Good afternoon, students. My name is Samir Sarkar. So today I will tell you about the coordinate, which in the previous session I already told you about the coordinate geometry. So now let's start. What are the first coordinate geometry? Okay. So now in coordinate geometry we already discussed about what are the two intersecting lines. That point is called origin, x-axis, y-axis. Okay, but now when two lines intersect perpendicularly to each other, this is a perpendicular. Okay, you can also say that these two lines are also intersecting lines. Okay, these two lines are also intersecting lines, but they are not perpendicularly. But here it is mandatory to divide this line perpendicularly. Okay, perpendicular मतलब ये 90 डिग्री पे होना चाहिए. Okay, so when two lines divide perpendicularly, then it will divides this line in these two lines divides this plane. Plane means इसको कहा जाता है, ठीक है, वो हवाई जहाज नहीं होता plane. This is your plane, ठीक है. तो ये प्लेन को वो कितने भागों में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स. कौन कौन से हैं? ये है आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ. ठीक है. तो ये जो है चार, इस चार कोऑर्डिनेट्स में इसको विभाजित कर देता है, मतलब तोड़ देता है. तो देखते हैं आगे. ये जो होते हैं इन सभी को कहते हैं क्वाड्रेंट्स. Okay, quadrants. So let's check what will be the sign of each quadrant. Okay, so what is the sign of the first quadrant? Look, if I talk about the coordinates, so this is your positive x-axis, this is your negative x-axis. Positive y-axis, negative y-axis. Okay, so now how will you solve? What is the coordinate of this one? अगर कोई नंबर या फिर अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर इसमें होता है, ठीक है, मान लेते हैं 2 और 3, तो ये जो है ये तो इसी कोऑर्डिनेट पे रहेगा. क्यों? एक्स एक्सिस का क्या है 1 2, ठीक है, 3 क्या है पॉजिटिव है, ये भी, इसका मतलब इसमें होगा. इसका मतलब ये पूरा जो भी पॉइंट बनेगा वो कहीं यहाँ पे बनेगा, जो कि अगर हम इसको प्लॉट करते हैं सब कुछ, दिस इज 0 1 2 3, ठीक है. तो देखते हैं ये 2 है, ये 3 है here. So when I plot this one, it will always lie in where? यही तो 2 and 3 है. तो ये जो जा रहा है ये आपका किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है. तो आप इसको कैसे देख के बता देंगे कि that this coordinate lie in the first quadrant? How you can check without solving it? Okay, that is the main factor. So now check, because listen to me very very carefully, students. Okay, देखते हैं. Here ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉक के विपरीत साइड में जाना पड़ता है. क्लॉक तो ऐसे घूमता है, बट वी आर मूविंग हियर 1 2 3 4. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यू कैन सी दैट व्हाट इज द एक्स एक्सिस, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव, इट मीन पॉजिटिव, क्योंकि इधर जाएगा. अब अगर हम लोग वाई एक्सिस देखते हैं तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर ही है, तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है. But as we move to the left hand side beyond this origin, you will get always negative part. For example, देखिए ये तो origin है, इसके इधर जितना जाएगा लेफ्ट साइड उतना नेगेटिव होगा. तो अब हम देखते हैं कि इसका x एक्सिस क्या है. देखिए नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग कहते हैं क्या? x एक्सिस. So what is x axis? Minus. What is the y axis? ये तो ऊपर जा रहा है आपका, तभी किस क्वाड्रेंट पे रहेगा? क्या होगा? पॉजिटिव.
these are the quadrants. ठीक है, थर्ड इस वाले में हम लोग इधर हैं, मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला किसके बीच में है, ये और इसके बीच में. So here the x axis is negative and y axis is what? It's also negative because it lies below this horizontal line. Okay, so negative negative. और इसमें क्या हो जाएगा, as we are moving we are considering this too, so we are moving to the right hand side. That means the x axis is positive and y axis is what? We are going below this line. That means that this one is a negative y axis. इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग को याद नहीं करना है, रिमेंबर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नथिंग, सिर्फ समझना है. अगर इस क्वाड्रेंट में हुआ तो क्या है, ये भी x एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, y एक्सिस भी पॉजिटिव है. If it is lying on the second quadrant, x axis is negative, y axis is positive. If it is lying in the third quadrant, that means ये वाला होगा, हम लोग लेंगे 90 डिग्री है. ठीक है, ये सारे के सारे तो 90 हैं, ये सारे के सारे, this symbol shows 90 degree. These all are 90. So we are moving to the left hand side. That means negative x, negative y, minus minus. Here this one we are considering positive x, negative y. Okay, positive negative. अब इसके बाद, इसके समझ जाने के बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल -2 + 3. Now tell me in which quadrant it with this coordinate lie. कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. We don't need to check the numerical value. हम लोग हमेशा चेक करेंगे क्या, only this sign. What is the x axis? Because as we know that this one is x, this is y. Okay, so -2 is a x axis. मतलब ये -2 जो है किसमें है, x axis में. तो where is x axis -2? Here. और ये 3 क्या प्लस में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा. सिंपल, आप साइन देके ही बता देंगे. जैसे मान लीजिए 3,3, विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, अब अगर मान लेते हैं -3 -5, विच क्वाड्रेंट, both sides are negative, here also both sides are negative, third quadrant. ये वाली, बस उसी तरीके से चलता है. It's very simple. Try at home. Okay. Now next. Now this is a coordinate geometry. These are the quadrants. Okay. Based on this, you have to solve some questions. And this is mainly used for to check which quadrant this coordinate lies, means that point lies. Now the next one is, suppose if this line is given, okay, this coordinate is x1, here is x2. ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट, मतलब ये आपके दो क्या हैं, ठीक है, ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. Why I am saying that this one is a coordinate? Because it contain x, y and within this parenthesis. क्योंकि ये parenthesis के अंदर है और ये कॉमा से अलग किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं. Same here also. Okay? ये दोनों कॉमा से सेपरेट किए गए. ये देखिए. So now अब हम लोग अगर इसमें पूछते हैं, now we are going to find out what is the distance between this A to B. How will you find out the distance between this A to B? हम लोग तो यहाँ से कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, पोजीशन क्या है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, ये हम लोग निकाल सकते हैं. बट इसका लेंथ कैसे निकालें? फॉर दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गिव वन फॉर्मूला. ओके, अब आने वाले वीडियोस में अगर आप चाहेंगे, अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मतलब इस फॉर्मूला को मतलब डिराइव भी कर दूंगा, मतलब बता भी दूंगा कि ये कैसे आते हैं. ओके,
So to find out the distance between A to B, अगर A से B के डिस्टेंस अगर देखना है तो A to B का डिस्टेंस हो जाएगा क्या, रूट ओवर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ओके, मतलब A टू B का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेस्ड ऑन दिस। दिस इज योर मेन फॉर्मूला। ओके, चलिए मैं क्या करता हूं, मैं ये x और y की जगह पे कुछ कोऑर्डिनेट दे देता हूं। सपोज इफ दिस वन इज 2 and 3 and this one 4 and 5. Okay, so now you have to consider, here it is given x2 x1 y2 y1. What do you mean by x2 x1 y2 y1? Which one is x1 y1? This one. This is x1 y1. इसको हम लोग x1 y1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, x2 y2. तो बस easy. So now you can easily solve these questions. How? अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो चेक करते हैं, देखिए, तो अब इसको चेक करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, 4, x1 की वैल्यू कितनी है, 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 5, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3, इसका होल स्क्वायर। तो चलिए अब देख लेते हैं। 4 माइनस 2 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2, 2 का होल स्क्वायर। तो चेक करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, कितना आया, ए की वैल्यू √8 और 2√2 भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो वैल्यू होगा, ये जो है ये इसका वैल्यू है, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब A टू B का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2√2, या फिर हम लोग √8 भी बोल सकते हैं। एंड दिस यूनिट इज यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग यूनिट्स में बोलेंगे, नॉट स्क्वायर यूनिट्स, ओनली यूनिट्स, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ना सेंटीमीटर दिया रहेगा, ना मीटर, ना किलोमीटर, कुछ भी नहीं दिया रहेंगे। तो इसके जितने भी मतलब निकलेंगे वैल्यूज, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट्स, ये, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ठीक है। ए से बी की दूरी जो है उसको देखने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब सिर्फ ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही नहीं है, अब मान लीजिए कि अगर इसमें कोई भी पॉइंट, मैं इसको से मिटा देगा, ठीक है, यही बारे में देखते हैं हम लोग। अब क्या है कि अब इसमें हम लोग अगर देखें, इसका तो हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिए। अब मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट, मान लीजिए एक यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता, मैं चाहता हूं कि मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता चले, बट हाउ विल आई फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P व्हेन दिस A एंड B वैल्यू इज गिवन। तो क्या हो गया, अब मैथमेटिशियन को एक चीज और की जरूरत पड़ गई कि इसको हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। और इसमें एक चीज और बोल दिया गया है कि अगर ये A एंड B इज गिवन, फाइंड आउट दी P, ठीक है, जो कि ये नहीं बोला है कि ये मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो इक्वली डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए रोटी है, रोटी को अगर आप बिल्कुल बीच में से काट देते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिड पॉइंट, मतलब वो कट गया पूरा,
दोनों अलग अलग टुकड़े, लेकिन बिल्कुल अगर हम जोड़ते हैं तो बिल्कुल सेम आएंगे, ओवरलैप करेंगे, सिमेट्रिक फिगर जिसको कहते हैं इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो P, हाउ विल यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, नॉट वैल्यू, कोऑर्डिनेट। मुझे इसका डिस्टेंस भी नहीं निकालना है और ना ही इसमें और कुछ करना है। इसमें बोला गया है कि अगर A to B, A and B coordinates are given, P is a point anywhere in this line segment AB. So, and this P divides this AB line segment into 2:3 ratio, या फिर 2:1 रेशियो मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी जैसे भी हो, मैं ऐसे बता दिया, 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम लोग कैसे करें, ये कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, डिस्टेंस नहीं, कोऑर्डिनेट। फॉर दिस अगेन मैथमेटिशियन गिव अ डिफरेंट फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, सेक्शन से आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, सेक्शन वाइज। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, इसमें कितने सेक्शन हुए, 1 2 सेक्शन, ठीक है, 2 सेक्शंस इसमें आ चुके हैं। सो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला यू कैन डिफाइन, यू कैन चेक वेदर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस P, ठीक है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये है x का कोऑर्डिनेट, कॉमा, अब y का भी निकालते हैं, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है, m प्लस n, ये प्लस का साइन है। Okay, so these are the formula. So now from this you can find out the value, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा। इसमें m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, ये x1 है y1 और ये है x2 y2। चेक करते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 2, एंड m प्लस n 2 प्लस 1 3। उसी तरीके से y का निकालते हैं, my2, m क्या है, इसमें m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बिल्कुल सेम मेथड, y2 का वैल्यू देखिए 5 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, बाई 2 प्लस 1। बस अब आप इसको सॉल्व करिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू। व्हाट इज द x वैल्यू हियर, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 बाई 3, ठीक है, एंड y वैल्यू 2 5 10, 10 एंड 3 13 बाई, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ये कुछ भी हो सकते हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके समझाया, दैट्स इट। बट एक्चुअली ये कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 2, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट। अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिख देता तो सही होता, यह एक्चुअल है क्योंकि उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये पूरा एक पार्ट का, ये पूरा कितने हैं, 2 पार्ट हैं, 1 and 1 कंप्लीट कंबाइंडली 2, इसका मतलब ये सेक्शन जो होगा 1 होगा, दूसरा वाला भी 1 होगा। लेकिन मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ दे दिया कि ये वाला ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको करना इसी तरीके से ही, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर देखिए अब हम लोग का ट्राइंगल का अगर कुछ दिया रहता है, ठीक है, ये x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है, ठीक है। तो ये आपके क्वाड्रेंट्स हो,
मतलब कोऑर्डिनेट्स में, तो ये है आपका ए बी एंड सी, ए बी सी। तो अब इस ए बी सी में आपको क्या करना है, ये ए बी सी में आपको देखना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना है, एरिया। Then how will you find out the area of this triangle? If only the coordinates are given, सिर्फ coordinates दिए हुए हैं तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो क्या है, हाफ इन ब्रैकेट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल टू हाफ x1। अब देखते हैं x1 के बाद क्या आएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। ये है फॉर्मूला, दिस वन इज योर फॉर्मूला। अगर आपको याद करना है तो देखिए कैसे करेंगे, पहले आप x1 x2 x3 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, 2 3 3 1 1 2, ये याद रखिएगा, 2 3 3 1 1 2, ठीक है। ये साइक्लिक ऑर्डर में जाएगा, 1 2 3। अब देखिए सबसे पहले मैंने 2 और 3 को लिखा, 2 3 3 1, उसके बाद फिर क्या होगा, 1 2। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फिगर, ठीक है, इसका आपका एरिया निकल जाएगा। सो यही तरह छोड़ते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स, सो यू कैन मैसेज मी, ओके, और I will try to help you, okay, in my next video. So now this is your area of triangle, to find out the area, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही एरिया निकालने के लिए होता है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।